पोजीशन पोजीशन यस पोजीशन पास कर दिया हमें जगह बना In India, cricket has been considered a religion. We see children, adults, and people of all age groups playing the sport across the narrow Indian gulliya, on badminton or basketball courts, on the terrace, and where not. You must be wondering who these kids are and who is guiding them. They must be from some convent or any other eminent school in Delhi, right? Well, no. These are a few middle class dreams that are grooming at the DDA Sports facility near RK Puram metro station in Delhi. Let us have a look into the lives which are intended to go beyond the goalposts. Kian, pass to orange, yes, go Nihal, Kian get up, no, good job. Meet Moinul Hassan, better known as Ali. He is an All India Football Federation licensed football coach. An energetic footballer in his younger days, he now runs his own football academy at DDA Sports facility in Hausghas, Delhi. Coaching 15 students amidst the dampness of lush green fields, Ali fights a tough battle to keep up the baton of football in Indian sports. This is Ali's story, one of resilience and battling against all the odds. The year was 2005, when after a gloomy season, India led by Baichung Bhutia won the SAF Football Championship, their first triumph in 4 years. Oblivious to the victory, a young boy in his teens was busy playing football, a game he so dearly loved, a game around which his whole life was soon going to revolve. That enthusiastic boy was Ali. However, enthusiasm is sometimes not enough to sustain the journey. Similarly, Ali faced lots of challenges and struggles. At times, he would not even get enough food. Ali wanted to make a career in football, but its limited scope and the lack of adequate opportunities brought him disappointment. Thoughts of committing suicide often crossed his mind. But such was Ali's resolve. After all the struggles, he still persisted. Playing in the Delhi government's Division A and Division B football leagues, he would get a meager match fee of Rs 50 per game. To sustain himself, he would often juggle between playing local leagues, which paid him pennies, and working at events, earning somewhere between Rs 300 to 500. My name is Moinul Hassan. His nickname Ali. I'm a football coach from D license and grassroots license. जब मैं 6th क्लास में था तब से फुटबॉल खेलता था and मैंने देखा फुटबॉल में करियर नहीं है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि फ़ुटबॉल मत खेलो, बट फिर भी मैं खेलता था, मेरे को अच्छा लगता था। पर एक सर थे मेरे, उन्होंने बोला कि फ़ुटबॉल खेलना है क्योंकि इससे बन भी सकता है करियर। तो अब मेरा सब कुछ है जो मैं फ़ुटबॉल से मैंने जो चाहा वो मेरे को मिला है। एक्चुअली सारा जगह क्रिकेट ही क्रिकेट था, तो मेरे को लग रहा था कि इसमें करियर नहीं बन पाएगा फ़ुटबॉल का। तो सब लोग क्रिकेट ही कहते थे, फ़ुटबॉल में कुछ नहीं है, फ़ुटबॉल नहीं हो सकता। मेरे दोस्त लोग सब क्रिकेट ही खेलते थे। मैंने कहा नहीं, हो सकता है, आप एक बार कोशिश तो करो। तो फिर मैं करता गया थोड़ा पार्क में लोगों के साथ थोड़ा घुलना मिलना बैठना। फिर भी लोग मेरे को मना कर रहे थे कि क्रिकेट खेलो, क्रिकेट से ही होगा, उसमें ही करियर है। मैंने कहा नहीं, फ़ुटबॉल से भी हो सकता है। तो मैंने ऐसा नहीं, मैंने शो करके दिखाया, इम्प्रूव करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है, फ़ुटबॉल में हो सकता है, तो मैंने भी किया है। 8-10 ईयर्स फुटबॉल खेला मैंने, दिल्ली लीग, गवर्नमेंट लीग एंड स्मॉल मैचेस, फ्रेंडली मैचेस, टूर्नामेंट, नोएडा, काफ़ी सारे टूर्नामेंट खेले मैंने, आउटसाइड दिल्ली के बाहर भी खेला मैंने। तो ऐसा नहीं था कि फ़ुटबॉल में नहीं बन सकता करियर। अगर आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हो तो वो मिलेगी आपको। एक टाइम पे मैं फ़ुटबॉल छोड़ने वाला था, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने एक ऐड वगैरह देखा टीवी पे, ISL 2014 इंडियन सुपर लीग। तो मैंने ऐड देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, ये लोग खेल रहे हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ फ़ुटबॉल। फिर अचानक से ऐड देखने के बाद मैंने नहीं, अब यही करियर बनाना है, इसी में फ़ुटबॉल खेलना है, इसी को अपना एक ड्रीम लेके चलना है। और आज अच्छा है, पोजीशन पे हूँ मैं, कोई इशू वाली बात नहीं। हाँ, काफ़ी सारा स्ट्रगल किया फ़ुटबॉल में। कभी फैमिली ने मना किया, बेटा फ़ुटबॉल मत खेलो, पढ़ाई मत करो,
इससे कुछ नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह में मैं काम करता था फुटबॉल खेलने के लिए, ताकि अपने लिए खर्चा निकाल सकूं। और काफ़ी सारा परेशानी आई, कभी खाना नहीं मिला, कभी बहुत सारी परेशानी, पर मैंने सबको अवॉइड किया। मैंने कुछ नहीं, आज नहीं है तो कल ज़रूर होगा। Aware of the lack of money in the field and doubtful of his future in the game, Ali started football coaching in 2013. In the year 2017, Ali applied for a coaching license to the AIFF. He earned the D license, which allowed him to coach in grassroots football. Then began a new journey. Anand Lok Warriors. Ali started his own academy. Kids started to get in, and the team eventually became a bunch of warriors. Currently, Ali mentors more than 15 boys from various backgrounds. मेरी एकेडमी आनंद लोक वॉरियर्स यहाँ पे आर.के.पुरम सेक्टर 3 है, मेट्रो स्टेशन के बराबर में, गेट नंबर 2। और ये मॉर्निंग क्लास होती है 7:30 टू 9:30, और इवनिंग में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4:30 टू 6:30। ये मेरी एकेडमी है वॉरियर एफ.ए। ये मैंने खुद, पहले मैं स्कूल में काम करता था, तो स्कूल के बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीखते, उनको एक बस बॉल दे दो वो इधर उधर भागते रहते हैं। अब ये है कि मेरी खुद की एकेडमी है, वॉरियर फुटबॉल एकेडमी, आनंद लोक वॉरियर फुटबॉल एकेडमी मेरी खुद की है, मैं खुद चलाता हूँ। तो अब मेरे को पता है कि फुटबॉल को ग्रो कैसे करना है, एकेडमी को कैसे रन करना है। तो बस अभी मैंने 2021 में इसकी वॉरियर फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट की है, तो अभी काफ़ी सारा ग्रो कर गया है। तो अब पेरेंट्स और छोटे बच्चे सब मेरे पास जुड़ रहे हैं, अब हल्के हल्के सब आ रहे हैं। काफ़ी सारे टूर्नामेंट भी खेले, पेरेंट्स को भरोसा हो रहा है कि कैसे फुटबॉल आगे बढ़ रहा है, और पेरेंट्स भी अब भरोसा दिखा रहे हैं अपने बच्चों पे कि हमारा बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो फुटबॉल में अच्छा है। Students training under Ali's guidance don't have somebody's hand on their heads. Belonging to humble backgrounds, the passion for playing football unites them all. Some of these boys can't even afford a proper training kit, yet they strive daily. Most of these students are lucky to have supportive parents, which is the biggest motivating factor behind their enthusiasm. मेरा नाम अशोक कुमारी है, मैं निहाल की मदर हूँ। मेरा बेटे को ना फुटबॉल खेलना बहुत पसंद लगता है, और वो इसी कैरियर में आगे जाना चाहता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एकेडमी ज्वाइन कराई। अगर उसका अच्छा रहा तो आगे भी करवाऊँगी उसको कैरियर बनाना है अपना, उसको रोनाल्डो बनना है। इसलिए वो कहता है मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, तो मैं खिलाना चाहती हूँ उसको। मेरा नाम गौरव नेगी है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं 14 साल का हूँ। मैं यहाँ पे अली सर की कोचिंग के पास आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी स्किल्स कराते हैं, मतलब बहुत ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत अच्छी। इनने मतलब आजकल बहुत टूर्नामेंट खिलाए हैं, बहुत फ्रेंडली मैच खिलाए हैं, और मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनका नेचर बहुत अच्छा है और मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से हूँ और मैं जब भी मैं कोई टूर्नामेंट खेलता हूँ लगातार हम जीतते रहते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी टीम भी है खेलने के लिए, और हम साथ में रहते हैं सारे। मेरा ये सपना था बचपन से कि मैं फ़ुटबॉल खेलूँ आगे, और मेरे को बहुत सारे कप्स खेलने हैं, जैसे कि मेरे को सुब्रतो कप अभी मैं स्कूल से खेलने वाला हूँ, मैं वो खेलूँगा। मुझे संतोष ट्रॉफी खेलनी है, मुझे इंडिया लेवल के लिए खेलना है, मेरा ये सपना है। मैं राइट विंग खेलता हूँ। मेरा फेवरेट फुटबॉलर नेमार जूनियर। इंडियन फुटबॉलर वैसे मुझे सुनील छेत्री बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरा एक तरीके से इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो भी बहुत इंडिया के, जैसे देखा है कि इंडिया की हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमारे से मतलब हम इतने मतलब छोटे छोटे इंटरनेशनल टीम से हार जाते हैं। अभी अफगानिस्तान का होता, हम उनसे हार गए। हमारे इतने बड़े देश में हमारे 11 प्लेयर नहीं निकल रहे अच्छे। तो मैं चाहता हूँ कि हमें ऐसे सुनील छेत्री जैसे 11 प्लेयर मिले, जिस वजह से हम और आगे पोर्टुगल, अर्जेंटीना के बराबरी कर सकें। हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से मेरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, यहीं पे रहते हैं बेट्सराय में। The Warriors have celebrated many victories together. The team has won about 13 out of 15 local tournaments. This mind-blowing consistency has been brought by proper training, discipline, guidance, and love towards the sport. मेरी एकेडमी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैंने अब तक 17-16 टूर्नामेंट्स खेले हैं, 15 या 14 टूर्नामेंट्स तो मैंने जीते हैं। मेरे को जीत इज़ इम्पॉर्टेंट और हार इम्पॉर्टेंट है। मेरे को बच्चों को ग्रो करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को
थोड़ा उनका आगे देखना है कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। These days, more kids are enrolling in Ali's academy. The Warriors are truly growing. But Ali doesn't want to stop here. He wants to win the Santosh Trophy, a prestigious government domestic football tournament in Delhi. It is not just about business for Ali. He wants to see his boys wearing Indian jerseys and doing well for the country. बाहर की कंट्री में पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, बच्चे को 4-6 ईयर से शुरू कर देते हैं, और हमारे इंडिया में बच्चा 17 में शुरू करता है तो फिर कहाँ से करियर बनेगा उसका। पेरेंट्स ध्यान देते हैं हमारा बेटा पढ़ाई कर ले, 10th पास कर ले, 12th पास कर उसके बाद खेलना, तो उसके बाद वो उसकी एज निकल जाती है। उसके बाद जब वो अगर वो 5 में या 4 में स्टार्ट करेगा तो मुझे लगता है कि वो आने वाले इंडियन फुटबॉल को काफ़ी सारे फुटबॉलर मिलेंगे। मगर जब वो 18 में स्टार्ट करेगा तो फिर वो निकल जाता है टाइम, उसके बाद फिर कोई पूछता नहीं है। मेरा अभी यही विज़न है कि मेरी एकेडमी से एटलीस्ट 5 या 6 बच्चे दिल्ली के संतोष ट्रॉफी तो एटलीस्ट खेले ही खेलें। It's been a fairy tale journey so far for Ali, from having nothing to almost having everything, as he describes it. And all this was possible only because of his pure passion and dedication towards football. Dreaming is free, that is why we have to dream, said Cristiano Ronaldo. Likewise, Ali's dreams have brought him where he is today. It was easy to give up and do easier things, to choose comfort for Ali, considering where he started off. Choosing passion is always difficult, especially in India, where people tend to choose delimited life options. Doing something different needs things to be done differently. Ali perhaps has done that. Not that he has achieved it all and that he has embarked on a path to greatness, but he has got that hunger to achieve it all. And the word greatness has a vast meaning. For now, Ali is simple, grounded, and passionate about what he does. Ali has got much more to attain and is excited to witness what the future holds for him. 145 करोड़ की आबादी हमारे देश की, कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि 24 प्लेयर नहीं निकल रहे हमारे देश से। बाकी अभी क्रिकेट ले लो, आप अभी एक किसी मोहल्ले में टूर्नामेंट कराओगे तो अभी 2 प्लेयर 4 प्लेयर ऐसे निकल आएंगे कि वो इंडिया के अंडर 19 टीम में खेलने लायक होंगे। मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, बेटी या बेटे को स्पोर्ट्स के लिए इनक्रेज कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। बेटा आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा पेरेंट्स से कि आप फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो, या जो आपकी हॉबी है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। और मैं यंग फुटबॉलर को यही बोलूँगा कि प्लीज़ हार मत मानो, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है।